تو کل جو الیکشن ہوئے اپنا کینیڈا کے فیڈرل الیکشن ہوئے تو اس میں کتنی ٹوٹل رائڈنگس تھی, کتنی ٹوٹل سیٹس تھی, تو وہ آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں 403-204-0011 403-204-0011 اینڈ اگر آپ ونر ہوں گے تو آپ کو ایک لارج پیزا ملے گا فرام پیزا 2020. تو ابھی ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے گیسٹ کے ساتھ جو کہ ہمارے کیلگری شہر میں وہ ہی از جوائن اس تھرو دا فون لائنس. ہلو اختیار بھائی, علی مدد. علی مدد, جلال بھائی, سلمہ جی, جی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ کہاں ہیں آپ؟ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ جی بڑے عرصے بعد پاکستان سے لوٹے جی, کوئی آلموسٹ سال وہاں پہ رہ کے. اچھا پاکستان گئے ہوئے تھے آپ؟ جی جی, آلموسٹ اے ایئر دیر. اچھا تو کیوں بھاگ گئے تھے آپ کیلگری سے؟ لوٹ کے واپس آنے کے لیے جانا ضروری ہوتا ہے. اچھا اچھا, یہ صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. بس پھر آگے نہیں, آپ کو وہاں مزہ نہیں آیا کیلگری جیسے جس کو چھوڑ کے آپ چلے گئے تھے, تو آپ کو مزہ نہیں آیا؟ مزہ بہت ہے جی, وہ بھی گھر ہے. میرا خیال ہے ہم لوگوں کی پرسنالٹی ایکولی ڈیوائڈ ہوگی ہوتی ہے دونوں جگہوں کے درمیان, دونوں سے برابر پیار ہے. صحیح بات تو یہ الیکشن کی ایکسائٹمنٹ جی, لبرل ڈاؤن ٹو دا کور. الیکشن میں آپ کو پتا ہے وہ پولیٹیکل جنکی, اس کے لیے دوڑ کے فوراً واپس آئے. صحیح بات ہے. کل الیکشن پہ چیخ چیخ کے آج گلے کا بھی گلے کا حال خراب ہے, تھوڑا سور سے آؤٹ ہے. تو الیکشن بھائی, سوری جو اقتدار بھائی, آپ کو آئی نو کہ یو آر جو ہے ویری مچ انوالو ان دا پالیٹکس. تو یو نو وارون اسٹارٹ وتھ یو کہ جو ہے دس وے جب بھی اپنا الیکشن جب بھی کال ہوئے 36 اور جو ہے 37 days ago نا, تو شروع کے 2 week جو ہے لبرل واز ویری ڈاؤن اینڈ آؤٹ. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ لبرل جو ہے لاسٹ 2 week میں دے کیم اپ, کیا انہوں نے ایسا کیا؟ لبرل کے ووٹس تو پریٹی اسٹیبل رہے ہیں پچھلے الیکشن کے ساتھ. اب اس میں کاؤنٹ کریں, سیٹ کاؤنٹ کر لیں یا ووٹس کا نمبر کاؤنٹ کر لیں, give or take about 6 million ووٹ پچھلے الیکشن میں تھے. ابھی الیکشن کینیڈا نے ابھی تک نمبرز آف ووٹس جو ہیں وہ سائٹ پہ نہیں ڈالے, لیکن سیٹ 157 سے 610 ملین میں 1 سیٹ کا اضافہ ہو گیا. ہم نے اور لے لی. تو لبرل کے ووٹ تو وہی رہے. یہ کنزرویٹو کے ووٹ کٹے ہیں اور اس کے 3 بڑے ریزن گنے جاتے ہیں جی. ایک کا نام جیسن کینی ہے, دوسرے کا میکسم برنیے ہے, تیسرے کا ڈگ فورڈ ہے. رائٹ, ٹھیک ہے جی. تو میکسم برنیے کی پیپلز پارٹی نے 6% ووٹ لیے ہیں. 6% ووٹ جو ہے وہ اگر آپ ڈیوائڈ کریں کنزرویٹو پارٹی کے ووٹ سے تو دیٹ ٹرانسلیٹس انٹو اباؤٹ 360,000 ووٹس. تو اتنے میں تو 18 رائڈنگز جیتی جا سکتی ہیں اگر یہ کنسولیڈیٹڈ 18 رائڈنگز میں ہوتا تو. تو پی پی سی کا بہت لاس ہوا ہے. کینی صاحب کی شیئر مس مینجمنٹ اینڈ ایروگنس آئی وڈ سے. اس میں ٹھیک ہے ان کے ایک فیکٹر ہے کہ کنزرویٹو پارٹی کے ڈونرز ہمیشہ بگ بزنس رہا ہے, تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, گیمنگ اینڈ لیکر انڈسٹری, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اسٹیمپیڈ پہ کھولا, لوگوں کی جانوں سے کھیلے, اس کا نقصان ہونا تھا. رائٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب یہی بات کر رہے ہیں کہ جو اتنے 600 ملین کا خرچہ ہوا ایٹ دا ٹائم آف پینڈیمک, واٹ آر یور تھاٹس اباؤٹ اٹ؟ یہ خرچہ جی ضروری تھا. ایک تو یہ جی کہ مورل پوائنٹ آف ویو سے جی the way he led his country through pandemic, اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. ہر کوئی بہت اس کو پریز کر رہے ہیں. Now it was about time کہ دیکھا جا سکے کہ اس کے بعد اب پوسٹ پینڈیمک ملک کو کون لیڈ کرے گا, اس کا کانفیڈینس کس کے پاس ہے, کس پارٹی کے پاس ہے. ایک یہ ضروری ہو جانا ضروری تھا. I'm a liberal down to the core, but میں اب کوشش کروں گا کہ میں اپنی امپارشل ہیٹ ڈال کے بات کر سکوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 اگست میں وی چیریٹی اسکینڈل کی امپیچمنٹ ہوئی تھی. فلپ پولیو کا بڑا وہ فائری قسم کا انٹرویو اینڈ آل دیٹ. تو ود ان دا رینک اینڈ فائل آف لبرل پارٹی یہ کوشچن بھی ہو رہا تھا کہ پرائم منسٹر ٹروڈو کتنا کانفیڈینس عوام کا ان کے پاس ہے. تو ہی ہیڈ ٹو پروو ہمسیلف اینڈ اٹس پروون دیٹ ہی ڈڈ ناٹ لوز اینی سپورٹ ایٹ آل. وہ ایک بہت اچھی بات تھی. پھر پولیٹیکلی یہ دیکھا جانا کہ ایرن اوٹول صاحب کو آئے ہوئے بھی ہارڈلی 1 سال ہی ہوا ہے. وہ بھی ان کا بھی تقریباً پچھلے سال 2020 کے فال میں آئے تھے. وہ بھی ہی واز ناٹ ریڈی فار این الیکشن. I mean he's a veteran politician, 2012 سے چلے آ رہے ہیں, but he's no Stephen Harper or anything. وہ big boys club کے ممبر جو ہیں, یہ reformist conservatives ہیں, یہ ان کے ممبر, ان کے he's not a part of them. یہ small c conservative کہلاتے ہیں, یہ pink conservative کہلاتے ہیں, جو ذرا لبرل پالیسیز کی طرف زیادہ لین کرتے ہیں, اور اس بات کا ان کو نقصان بھی ہوا ہے. صحیح ہے. تو یہ 2-3 وجوہات تھیں جن کی بنا پہ الیکشن اس وقت کال کیا گیا تاکہ کانفیڈینس شور ہو جائے کہ ڈز پی ایم ٹروڈو اسٹل انجوائے the same confidence of the popular voters. He does. Definitely. تو اقتدار بھائی ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جو ہے اپنا مسٹر ٹروڈو نے بہت اچھا کام کیا جو ہے اسپیشلی بگننگ آف دا اپنا پینڈیمک.
पूरा जब पूरी दुनिया बंद थी तो जो अपना ही मेक श्योर कि अपना सबके पास खाने के लिए पीने के लिए पैसे हैं, तो उन्होंने जो है सबका प्रोग्राम शुरू किया और दुनिया में ऑफ कोर्स इसकी जो है अपना जो है तारीफ अभी भी हो रही है. तो आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ कि इनको जो है मेजॉरिटी नहीं मिली? इन्होंने इतना काम किया, इतनी तारीफें हो रही है, सही बात, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी नहीं है, ये वहीं के वहीं है 157 सीट्स. क्यों ऐसा? जी उसकी वजूहत में एक एनडीपी फैक्टर भी है. जगमीत सिंह साहब की राइजिंग पॉपुलैरिटी, ही इज आल्सो वेरी करिज्मेटिक लीडर. वो एक फैक्टर भी है जो वोट डिवाइड करता है हमारी साइड पे. दूसरे आप देखें कि कैनेडियंस फिजिकली बहुत वी आर ऑल सोशली लिबरल्स, लेकिन एक बड़ा सेगमेंट है जो फिजिकली खुद को रिस्पॉन्सिबल काउंट करता है और फॉर सम रीजन उनके माइंड में ये है कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंजर्वेसी के साथ आती है. आपका बजट बैलेंस शायद कंजर्वेटिव ही करेंगे. आप देखिए कि अलावा प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर, वहां पे एक लिबरल गवर्नमेंट है प्रोविंशियल, या बीसी में एनडीपी की गवर्नमेंट है. उसके अलावा हर प्रोविंस में कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट है, कंजर्वेटिव और सम हाउ कंजर्वेटिव. जैसे क्यूबेक में कंजर्वेटिव कलर के लोग हैं. तो लोग बेसिकली चाहते हैं कि बजट सम हाउ बैलेंस्ड रहे, पर एट द सेम टाइम इसमें देखिए हमारा बजट 6 बिलियन अगर डेफिसिट में जाए तो उस पर गवर्नमेंट गिर जाया करती थी हार्पर साहब की. इस दफा 460 बिलियन स्पेंड किया हमने पेंडेमिक के टाइम पे. तो वो एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से वोट लूज भी हुआ, पर एट द सेम टाइम बिगर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी स्टिल सपोर्ट्स पीएम ट्रूडो. यू आर सो राइट, सो राइट. या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. या दैट्स सो ट्रू. सो आपको लगता है कि अब जो इलेक्शंस हो गए और इनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट आ गई, तो डू यू थिंक he still will be as popular because what he did in pandemic, or he has to still gain more confidence of people in doing something differently? Well, one thing is for sure, he's not going anywhere in next 4 or 5 years. यहाँ पे conventionally 4 year और legally 5 year की term होती है. तो अब कोई पार्टी भी एथिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं मूव कर सकती. ये नहीं कह सकती कि इलेक्शन अर्ली कॉल कर लें. तो 5 years nobody has a face to say कि इलेक्शन कॉल कर लें. So for next 5 years he is not going anywhere. इन 5 सालों में yes he got another minority. यहाँ पे अनलाइक इंडिया और पाकिस्तान, वहां पे आपके पास अगर मेजोरिटी ना आए तो आपको जिसे कोलेशन कहते हैं या गठबंधन या मखलूत हुकूमत कहते हैं बनाना पड़ती है. यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ पे आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना के भी हुकूमत बना सकते हैं. एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ अ लेजिस्लेशन और अ बिल, उस वक्त पे आपको किसी एक पार्टी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. वो राइट और लेफ्ट कहीं से भी गार्नर की जा सकती है. तो आई एम प्रीटी श्योर विद द क्रिज्मा ही हैज, विद द पॉलिसी, एंड ही हैज प्रूवन हिज पॉलिटिकल एक्यूमेन. मतलब इट्स नो जोक. तीसरी टर्म जीत जाना मजाक नहीं है. तो ही विल डेफिनेटली एंजॉय मोर पॉपुलैरिटी, एंड आई एम प्रीटी सर्टन कि इससे अगले इलेक्शन में, जो कि अब अगर हम ठीक कैलकुलेट करें तो वो 2025 में होगा, तो मेरा ख्याल है कि लिबरल पार्टी इससे ज्यादा वोट गेन करेगी. शायद प्रोविंशियली भी करेगी. अच्छा, तो भाई यू नो कल मुझे किसी ने सवाल पूछा ये, और तो उसका ऑफ कोर्स मुझे जो है जो अपना कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है. और लाइक आई थिंक यू डू. अभी जैसे जो लिबरल को 157 मिली, फिर उन्होंने जो है अपना या तो इधर एनडीपी के साथ मिलकर या तो जो ब्लॉक क्यूबेका के बीक्यू के साथ मिलकर वो गवर्नमेंट बना सकते हैं. तो अगर अब देखा जाए तो ऑन द अदर हैंड ये जो है ये जो कंजर्वेटिव, तो वो तो यानी उनको 121 मिली है, वो भी अपना एनडीपी और बीक्यू के साथ मिलके जो है अपना बना सकते गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटी गवर्नमेंट. ये एक जनरल मिसकंसेप्शन भाई, सॉरी, ये जरूरी नहीं है कि किसी के साथ मिल के गवर्नमेंट बनाए. जिस तरह पहले अर्ज किया ना जी कि कोलेशन गवर्नमेंट कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी नहीं है कि गठबंधन जैसे कहते हैं या कोलेशन या मिल के हुकूमत बनाई जाए. यू कैन, एज लॉन्ग एज यू हैव द बिगेस्ट नंबर, तो आप गवर्नर जनरल आपको पहली जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर्स होते हैं उसको इनवाइट करता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, चाहे माइनॉरिटी हो. इशू होता है सिर्फ लेजिस्लेशन पास करने के टाइम पे. तो 170 मैजिकल नंबर है आउट ऑफ 338. उस 170 से कम भी आए तब भी आप हुकूमत बना सकते हैं. आपको किसी और के साथ जो है कोलिशन फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे. अच्छा, ठीक. अब हैविंग सेड दैट, वो 338 का जो नंबर हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैं सुन रहा था सिद्धू साहब ने भी बताया कि देखिए आउट ऑफ 338 ओंटारियो इज 121, क्यूबेक इज 79, अटलांटिक कनाडा इज 32. ये 231 सीट्स बन जाती हैं अटलांटिक एंड ईस्ट की. तो हाँ जी, तो उसके बाद फिर आप देखें, जिस तरह कल आपने देखा ना कि नंबर्स जैसे आ रहे थे, इनिशियली लग रहा था कि ये इलेक्शन डिसाइड हो गया पहली 200 सीट्स पे. ऐसा ही होता है. तो जी बिल्कुल. तो अभी जैसे हम जो स्पेशली जो है जगमीत सिंह कह रहे थे, आई थिंक ही हैड सम जो है उनकी जो पॉइंट्स थी कि स्पेशली जो क्लीन वाटर फॉर द जो इंडिजिनस पीपल,
आई थिंक वी आर इन जो है 2021 हियर, और उनके पास जो पीने के लिए पानी नहीं है. हमारे जो ओरिजिनल जो कैनेडियंस है, आई थिंक कि आपको लगता है कि जो है अपना ट्रूडो विल गो फॉर दिस टाइम, इसलिए कि वो अपना प्रॉमिस उन्होंने 2 बार भी किया था, बट इट्स नॉट देयर येट. आपको लगता है कि होगा इस बार? Jalal bhai, in 2021, a country that's a member of a G7 and one of the richest nation on earth, if we're still talking about giving clean water to our indigenous people, it's a big point of concern. Yes. It is. ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए. ये इलेक्शन का नैरेटिव या स्लोगन हो ही नहीं सकता. ये तो बड़े सोचने की बात है. सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. नो, आई थिंक होपफुली ये जो इस बार जो इलेक्शन हुए तो लाइक हमें जो कैलगरी में एक जो लिबरल आए हैं, या तो एडमिंटन में देयर इज वन सीट एज वेल, सो होपफुली यहाँ पे इनका थोड़ा जो नाम है इस बार लिबरल का, तो जो है अभी जैसे अल्बर्टा के लिए वी नीड मोर इन्वेस्टमेंट हियर, वी नीड मोर पाइपलाइंस हियर. होपफुली ही विल वर्क विथ जो है प्रीमियर यहाँ के होंगे, जो भी होंगे, या तो जेसन केनी और समवन एल्स इन द फ्यूचर, बिकॉज वी नीड दैट फॉर अल्बर्टा. जी बिल्कुल ऐसे ही है जी. मतलब सॉरी मैं क्वेश्चन मिस कर गया आपका जी. इट वाज समथिंग टू डू विद पाइपलाइंस और एनीथिंग. हाँ, इन्वेस्टमेंट इन अल्बर्टा, वी नीड सम इन्वेस्टमेंट्स. या जी वो हाँ जी, फॉर्चुनेटली वी मैनेज टू इलेक्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कैलगरी. तो चाहल साहब जो है, ये इनका बैकग्राउंड भी जो है सिटी प्लानिंग में इनकी डिग्री भी, और उसके बाद इनका सिटी काउंसलर रहना भी. तो इनके मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि इनको अमरजीत सोही साहब को जो मिनिस्ट्री मिली थी 15 में इंफ्रास्ट्रक्चर की, और वो मेरा ख्याल, और वो मिनिस्ट्री सबसे ज्यादा फंड्स वाली मिनिस्ट्री होती है कनाडा में, अदर देन द डिफेंस मिनिस्ट्री. तो मेरा ख्याल है इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की मिनिस्ट्री मिलेगी, और उस मिनिस्ट्री में बहुत आपके पास ये फंड्स को डिस्पेंस अपनी प्रेरोगेटिव पे करने की लेवरेज होती है. तो उसमें मेरा ख्याल है ये अल्बर्टा को के बहुत सारे मसाइल दूर कर सकते हैं. अल्बर्टा में टोन, पॉलिटिकल टोन जो है वो ब्लू से पिंक की तरफ जा सकती है, समवेयर बिटवीन येलो एंड पिंक. और आपकी अगली हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसमें तो वेरी क्लियरली अभी येलो नजर आ रहा है आपको. यस, बिल्कुल बिल्कुल. No, it is such an eye opener. रैंडी वाजनाल जीते हैं एडमिंटन सेंटर से. वो वेटरन है, वो भी एक 19 से पहले पिछला इलेक्शन वो भी जीत चुके हैं. अभी तक इलेक्शन कनाडा की साइड पे नहीं आया, क्योंकि डिफरेंस उनका कोई 110-15 वोट का है सिर्फ, तो शायद रिकाउंट और इस तरह की सीन चल रहा होगा. तो वो उनको आई एम नॉट इंटायरली श्योर, लेकिन जब आपके कंजर्वेटिव स्ट्रांग होल्ड की 34 में से 2 सीट्स निकाल जाएं लिबरल एमपीज, तो दोनों डिजर्व करते हैं कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिले. आपको याद होगा कि यहाँ क्रिश्चियन साहब के साथ यहाँ पे एन मैकॉलिन साहिबा पहली मर्तबा एडमिंटन से जब एमपी बनी थी, तो उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था. हाँ जी, तो ये ऑनर होना इन दोनों एमपीज का बनता है. नो, आई थिंक कल जो है अपना मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो है सीबीसी या तो ग्लोबल नेशनल, दैट्स व्हाट दे वर टॉकिंग, कि अगर अपना जॉर्ज चाहल जीतेंगे तो ही विल बी लाइक ही विल गेट वन ऑफ द मिनिस्ट्री फॉर श्योर. There was a time after last elections कि हम सोच रहे थे कि between Alberta and Ottawa we need a liaison, we need somebody who can bring our concerns there, क्योंकि यहाँ पे लिबरल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी. तो एक मर्तबा पे ये भी सोचा गया था कि नैन्सी साहब शायद मेयर से रिजाइन दे दें और उनको ये liaison की जगह मिले. तो now we have an elected liaison there. Yeah, बिल्कुल. So right. So before we let you go, just the last question, you can जो है short answer as well if you like. आपको लगता है कि next ये जो जेसन केनी will he survive next 2 years, and Mr. Erin O'Toole, is he going to stay there? Erin O'Toole is, yes, he is going to stay there. बिकॉज उनके होते हुए 2 सीट्स का लॉस तो हुआ, लेकिन पॉपुलर वोट जो है वो उसमें लंबा नुकसान उनकी वजह से नहीं हुआ. इवन दो कंजर्वेटिव पार्टी हैड 15% लेस वोट कंपेयर टू लास्ट इलेक्शन, वो 15% जो है वो कैनी साहब के सर जाता है. नाउ इज कैनी साहब गोइंग टू सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 2 years? आई डाउट सो. अल्बर्टा की 87 सीट्स में यहाँ पे जो लॉ है वो ये है कि इफ 25% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी एसोसिएशंस, कंजर्वेटिव पार्टी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एसोसिएशंस हैं वो 25% बनती है 22. अगर वो 22 एसोसिएशंस लीडरशिप रिव्यू मूव कर दें तो उस सूरत में देयर इज नो चॉइस, ही विल हैव टू गो फॉर अ लीडरशिप इलेक्शन, जो कि वैसे भी अगले साल जनरल इलेक्शन से पहले अक्टूबर में होना ही था. लेकिन उस वक्त तक जो है वो एक डिफरेंट सिचुएशन है. अब अगर आउट ऑफ बीइंग अनपॉपुलर अगर इस वक्त पे अगर वो हो, और टाइलर शेंड्रो को थ्रोइंग हिम अंडर अ बस इज नॉट. तो और वो रूरल अल्बर्टा में खासे पॉपुलर थे. तो अब ये हो सकता है कि लीडरशिप रिव्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी एसोसिएशंस की तरफ से कॉल हो जाए, क्योंकि अगर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मिनिस्टर अगर कुछ भी करते रहे तो ही डिड व्हाट ही वाज टोल्ड बाय द प्रीमियर टू डू. एग्जैक्टली. प्रीमियर हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी. इफ ही डजंट, there are democratic ways, he may not survive next 2 years, I think. इससे कि जिस तरह जो है बिल मोनरो गए थे फ्रॉम द फेडरल,
in favor of जो मिस्टर ट्रूडो, और इस बार ये मिस्टर शैंड्रो गए जस्ट इन फेवर ऑफ जेसन केनी. बिल्कुल सही बोला आपने. इकतर भाई, थैंक यू सो मच. Thank you so much for your time. Nice my pleasure. Thank you very nice much. talking Thank to you you. to both And of you. yeah, thank you so much. And we will touch base with you for some other reasons also. हाँ, Now अपने you शेरो are शायरी here. का ये क्यों Yeah, शो we कर ले want यार. to do that. जी, हैट चेंज करनी पड़ेगी जिस दिन आप कहेंगे तो. बिल्कुल बिल्कुल. With absolute pleasure, anytime. Yeah. Okay. Thank you so much. चलो, Have thank a you so good much day. यार. Pleasure. Yeah. Take Thank you. care. Bye. Bye. तो गाइज ये थे जो हमारे भाई जो है क्या बोलते इक्तदार अवान फ्रॉम कैलगरी. एंड आज का शो बड़ा मिर्च मसाले वाला था. आई थिंक वी नीडेड इट जो आफ्टर फेडरल इलेक्शन कि क्या है क्या नहीं. इसलिए कि नेक्स्ट जो 4 साल के लिए मिस्टर ट्रूडो इज हियर एंड फॉर एटलीस्ट next 2 years Jason Kenney is here कि नहीं. So we'll see back. We'll see. अभी on now down it's the road. interesting. Yeah. It's very It'll be interesting now yeah, कि अभी क्या होगा. क्या तो सलमा जी, हमारे जाने का वक्त हो गया. बस आपसे हम इस वक्त अलविदा करते हैं. जो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन टाइम का पाबंदी करनी चाहिए वो. तो इंशाल्लाह अगले मंगलवार को फिर हम आपसे मिलेंगे और आपसे बातें करेंगे, दूसरे गेस्ट लेकर आएंगे. तो मीनवाइल अब अपना ख्याल रखिए, मास्क जरूर पहनिए, कोशिश करके जिसने वैक्सीनेशंस नहीं किए हैं वो वैक्सीनेशंस लें, और सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें, मास्क पहनते रहें, और अपना ख्याल रखेंगे तो हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे. बस यही हम कहना चाहते हैं. तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और हमें इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज और शब खैर. और हमने ये जो सवाल पूछा था पिज्जा 2020 के लिए, तो हमें जो है रिस्पांस ऑलरेडी आ चुके हैं, टेक्स्ट मैसेजेस. तो अभी आपके पास एक और तकरीबन जो है 55 मिनट्स और हैं. तो कनाडा में टोटल राइडिंग्स कितनी थी इलेक्शन में? कल जो इलेक्शन खत्म हुए, टोटल राइडिंग्स कितनी थी टोटल? तो आप वो जो टेक्स्ट कर दें 403-204-0011 403-204-0011. तो टेक्स्ट कर दीजिए अपने नाम के साथ, और जो विनर होगा उसका ड्रॉ होगा, और हमारे कल जो सुफीर पाजी वो आपको जो है कांटेक्ट करेंगे वाया टेक्स्ट और वाया फोन कॉल, और वो रेडियो पर अनाउंस भी कर देंगे 8 से 9. और नेक्स्ट वीक अपना जो है हमारे साथ होंगे, आपको जैसे पता है कि हम जो पिछले हफ्ते बात करते हैं सलमा जी, हमें जो फोन कॉल्स आते हैं, स्कैम फोन कॉल्स आते हैं, टेक्स्ट मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, या तो सोशल मीडिया पे आपको आता है कि प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक, तो आप वो क्लिक न कीजिएगा. तो ये जो हैकर्स होते हैं ये आपको भेजते हैं. तो इसीलिए हमारे पास हमारे अच्छे दोस्त मिस्टर हैंक, उनको हम बोलते हैं हैकर हैंक. ही विल बी लाइव इन द स्टूडियो. आप अपने सवाल तैयार करके रखिएगा कि आपको किस किस तरह के आपको टेक्स्ट मैसेज आते हैं या तो व्हाट्सएप पे आते हैं, और उससे आप किस तरह बच सकते हैं. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट वीक. हाँ, 1 घंटे के लिए हमारे स्टूडियो में होंगे, और यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन यू हैव. एंड ऑफ कोर्स मी एंड सलमा जी विल बी आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू हिम. इंशाल्लाह. ओके, मिलेंगे अगले हफ्ते. खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, आदाब, एंड या अली मदद. गुड नाइट.